So dear student, I have a set B. You may have any other set A, B, A, C or D. So let's start question number 26. First question of section 2nd mathematics. Find the ratio of x and y if number is 20% of x and another is 25% of y. तो हमें एक ऐसा रेशियो फाइंड करना है इसमें x दिया गया है 20% ऑफ x दिया हुआ है एंड 25% ऑफ y दिया हुआ है. ठीक है, तो हमें x का 20% निकालना होगा. x का 20% निकालेंगे 20/100, x मल्टीप्लाइड बाय 20/100 और y निकालना पड़ेगा. y जो होगा वो कैसा होगा, y मल्टीप्लाइड बाय 25/100. ठीक है, so find the ratio of x and y if the number is 20% of x and another is 25% of y. ठीक है, so this one is cancel. So x upon y is equal to 25 upon 20. So here we divided by 5, so it becomes 5 and it becomes 4. So 5 upon 4 means 5 is to 4. So option is 1. Option 1. Question number 27. The weight of 20 students from a class is given in the frequency table. Find the mean of their weights. Select two correct alternatives. टू ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है. सो वेट ऑफ द स्टूडेंट दिया गया है केजी में और फ्रीक्वेंसी दी गई है 11, यानी कि 20 केजी के 11 स्टूडेंट हैं, 21 केजी के 8 स्टूडेंट हैं और 22 केजी के 22 केजी का सिर्फ एक ही लड़का है. ठीक है ना, एक ही स्टूडेंट है. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई देम. सो इफ यू मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाइड बाय 21, सो वी गेट हियर 220. Then 21 multiplied by 8 we get 168 and here we get 22. If we add this, because we have to find mean means what? The total addition divided by 20 students, number of students or the number of anything that we are given in the question. Okay, so here we get addition is 410. We have to divide 410 by 20. So 200 is cancelled. 41 divided by 2, it means we get 20.5 kg, because we get here weight of student in kg. So we get 20.5 kg. So 20.5 kg, option second is right. And we have to find two correct alternatives. So we get option number 4 also, 20 kg and 500 gram. 20 kg and 500 gram. 0.5 means 500 gram. Okay, let's move to another question. Quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral. ये cyclic quadrilateral है. Point E lie on a ray BC. जो है point E, ये BC ray पर है और BC और E एक क्या है, पॉइंट दिए गए हैं जो एक ही लाइन में है. ठीक है, if m measure of angle DC is equal to 95 degree, then measure of angle DAB कितना है हमें फाइंड आउट करना है. तो ठीक है, कंसेप्ट ये कहता है कि अगर A 95 डिग्री का है तो एंगल A भी 95 डिग्री का ही होगा. ठीक है ना. इफ द एंगल दिस एंगल इज 95, then angle A is also 95. Let's explain how it's come. देखिए, अब ये 95 है. अगर हम ये एंगल को फाइंड आउट करते हैं, ये एंगल को अगर फाइंड आउट करते हैं सी एंगल को, तो सी एंगल 85 डिग्री का आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि ये लीनियर एंगल्स है. ऐसा देखिए 180 डिग्री इनकी एडिशन आनी चाहिए. ये 95 का है तो ये 85 का होगा. 95 प्लस 85 डिग्री हो जाएगा. अगर ए 85 का है, अगर ये सी एंगल 85 का है, ये 85 का है, तो एंगल ए और एंगल सी की जो एडिशन है, एंगल ए प्लस एंगल सी की जो एडिशन है, साइक्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. इट मे बी 180 डिग्री. सो इफ एंगल सी इज 85 डिग्री, so
angle A is equal to 180 degree minus 85 degree. That means angle A becomes 95 degree. So the option number 2, it is a right answer. From question number 29, from a rectangular thermocol sheet with dimension 20 by 10 centimeter, a rectangular piece of 2 centimeter by 5 centimeter dimension is cut. Which of the following sentence will be correct for the thermocol sheet? So here we get a thermocool rectangular sheet, and if we cut 2 by 5, this is 2 centimeter and this is 5 centimeter, then which of the following sentences will be correct for the thermocol sheet? So first perimeter will be increased. तो perimeter तो increase नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि थर्मोकॉल शीट तो हमने बढ़ाई नहीं है, बढ़ाई नहीं. अगर हम इसको ऐसा बढ़ाते इधर से तो इसका जो पेरीमीटर वो बढ़ जाता था. तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है. सेकंड, पेरीमीटर विल डिक्रीज, तो डिक्रीज भी तो नहीं होगा क्योंकि ये भी ये जो है कटा हुआ ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा. ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया. अगर हम फिर से इसको जोड़ देते हैं, तो इसको भी हमें काउंट करना पड़ेगा. यानी कि जो पेरीमीटर जो रहता है वो पेरीमीटर क्या होता है? एडिशन होती है सबकी, सब साइड की एडिशन होती है. तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 और ये 20, तो 20 20 40 प्लस 20 60 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आना चाहिए था. अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये बचा हुआ कुछ ना कुछ सेंटीमीटर होगा, ये बचा हुआ कुछ ना कुछ सेंटीमीटर होगा. तो इनकी भी एडिशन अगर हम करते तो इसके पेरीमीटर में कोई बदल नहीं होगा. यानी कि पेरीमीटर जो है वो रिमेन सेम रहेगा. ठीक है. उसके बाद का क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है. एवरी प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर. यस, एवरी प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर शुरू होते हैं 2 से. 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार से. यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एक्सेट्रा. एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर. यस, एवरी रैशनल नंबर इज ऑल्सो रियल नंबर होते हैं. सम ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर इज एन इवन नंबर. हाँ, ये जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है. ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन 3 जो सी सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है. क्यों है अभी बताता हूं मैं. सम पूछे है 2 प्राइम नंबर. अगर हम इन दोनों की प्राइम नंबर की एडिशन करते हैं तो ये तो हमें इवन मिल जाएगा. 3 + 5 इवन मिल जाएगा, 8 हो जाएगा. मगर अगर हम 2 और 3 की एडिशन करते हैं, 2 और 3 की सम लेते हैं तो 2 और 3 की सम 5 है, जो कि ऑड नंबर है. हमें कहा गया है कि सम ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर इज इवन नंबर. तो हर बार तो ये इवन नंबर नहीं आएगा. 2 और 3 की एडिशन करेंगे तो 5 आएगा. 2 और 5 की एडिशन करेंगे तो 7 आएगा. 2 और 7 की एडिशन करेंगे तो 9 आएगा. यानी कि एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर की जब हम एडिशन करेंगे तो हमें हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा. ठीक है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है. उसके बाद का क्वेश्चन है इन द फिगर लाइन यल एंड यम इंटरसेक्ट इन पॉइंट ओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है. और ये देखिए ये पूरा स्ट्रेट लाइन दिए हुए हैं, ये स्ट्रेट लाइन है. तो इन दोनों की एडिशन मिलाकर कितनी आनी चाहिए? 180 डिग्री आनी चाहिए. अगर ये 34 डिग्री का है तो इसमें कितने मिलाए जाए ताकि ये 180 डिग्री हो जाए? तो हमें मिलाना पड़ेगा 146 डिग्री. सो 146 डिग्री प्लस 34 डिग्री के एडिशन करेंगे तो ये 180 डिग्री आ जाएंगे. ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 146 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 32, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स. 2 करेक्ट ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है. ओके, वी हैव टू फाइंड 2 करेक्ट ऑप्शंस. द नंबर डिविजिबल बाय 3 and 4 आर आल्सो डिविजिबल बाय 8. So it is a wrong statement. If the number is divisible by 3 and 4, it is divisible by not 8, it is divisible by 12. Okay, कौन सा भी अगर 2 नंबर है, if any 2 नंबर जिसमें कोई भी यानी कि 1 में कॉमन है,
1 उनमें कॉमन है। यानी कि जैसे देखिए आप सपोज लो हमने 5 और 7 लिया हुआ है। अगर 5 और 7 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं हम, इसमें दोनों में कॉमन कौन सी चीज है? कॉमन सिर्फ 1 नंबर है, यानी कि एक को प्राइम नंबर है। अगर दोनों को प्राइम नंबर होते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होता है उससे भी हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 35 से भी वो नंबर डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 5 और 7 से भी डिवाइड होता है तो वो नंबर 35 से भी डिवाइड होगा। तो अगर ये नंबर 3 और 4 से डिविजिबल है तो इट इज डिविजिबल बाय इट्स प्रोडक्ट दैट इज 12। बट यहाँ कहा गया है कि डिविजिबल बाय 8, सो इट इज रॉन्ग। ऑल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2 एंड 9 आर ऑल्सो डिविजिबल बाय 18। यस, अभी मैंने बताया आपको, अगर कोई नंबर को प्राइम नंबर है, यानी कि 2 और 9 को प्राइम नंबर है, इनका जो प्रोडक्ट आएगा 18, उससे भी वो नंबर डिविजिबल होगा, यानी कि ये बी स्टेटमेंट राइट है। द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 एंड 10 आर डिविजिबल बाय 2। यस, इट इज ऑल्सो राइट, क्योंकि 10 की प्रॉपर्टी बताती है अगर किसी के नंबर का 1s प्लेस 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है, एंड अगर किसी नंबर का 1s प्लेस अगर 0 है तो वो 2 से भी डिविजिबल होता है। और 6 की प्रॉपर्टी बताती है अगर कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से भी डिविजिबल होगा तो ही वो 6 से डिविजिबल होगा, यानी कि इसमें भी 2 आया है, तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। तो स्टेटमेंट बी एंड सी आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर 2, एंड we have to find 2 correct options, so option 1 is also correct, statement A is incorrect, so statement 1 तो incorrect है, तो option 1 and 2 it's a right options. Question number 33, which of the following conditions should be given to make the total surface area of sphere and cylinder to be equal? तो टोटल सरफेस एरिया बताया गया है स्फीयर का, और टोटल सरफेस और सिलेंडर का जो है सरफेस एरिया, इसमें ये इक्वल आने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? तो 4 कंडीशन हमें दिए गए हैं। अगर हम सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालते हैं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि देखो सिलेंडर कुछ इस प्रकार के होगा, इस प्रकार से सिलेंडर है, ठीक है ना। तो ये जो भाग है वो सर्कुलर है, ये भी भाग सर्कुलर है, और इनका एरिया निकालोगे तो सर्कल का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, और ये 2 बार है इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस तो ये सिलेंडर के बारे में बता रहा था मैं अभी। तो सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो इस प्रकार से आएगा, ठीक है। और स्पीयर का जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस 4 पाई आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, सो 2 गेटिंग 4 पाई आर स्क्वायर, सो 2 पाई आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अभी आ जाएगा 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, सो ये 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा आर एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सो इफ यू कट दिस आर विद दिस आर, सो वी गेट एच इज इक्वल टू आर। तो जिसकी हाइट जो है वो हाइट क्या होनी चाहिए? ये जो स्पीयर है उसके रेडियस के बराबर होनी चाहिए, हाइट स्पीयर के रेडियस के बराबर होनी चाहिए, जो कि हमें कौन से भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, सिर्फ यह दिख रहा है कि रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्पीयर। तो स्पीयर के रेडियस के समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यह कंडीशन फॉलो करते हैं ऑप्शन क्रमांक जो है वो 2। तो रेडियस एंड हाइट, मगर यहाँ पर रेडियस नहीं है, रेडियस और हाइट अगर हम आर और एच दोनों भी कंसिडर करते हैं, आर एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर करते हैं, तो हमें ऑप्शन 2 इट्स अ राइट ऑप्शन। अगर इस क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया की जगह सिर्फ कहा होता सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर जो होता है 2 पाई आर एच होता है, और सिलेंडर का, और जो सरफेस एरिया है स्पीयर का वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये सिलेंडर का है और ये स्पीयर का है, तो 2 पाई से ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 जो है इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि h की जो वैल्यू आ जाएंगी वो 2 r के समान आ जाएंगी।
एच की, तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन 4। हाइट ऑफ सिलेंडर, जो हाइट ऑफ सिलेंडर है शुड बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ स्फीयर। देखिए 2r का मतलब क्या होता है, यानी कि रेडियस की सेकंड मल्टीपल लिया हुआ है, तो रेडियस के अगर ट्वाइस किया हुआ है, रेडियस के अगर ट्वाइस किया हुआ है तो रेडियस की ट्वाइस तो d होता है, डायमीटर ही होता है। तो ये ऑप्शन राइट आ सकता है। मगर यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है तो ऑप्शन 2 इट में बी राइट। ओके, अ फ्रूट सेलर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रूट सेलर परचेज 48 डजन बनान्स एट द रेट ऑफ 48 रुपीज 48 पर डजन। 1 dozen bananas were spoiled. He sold the remaining bananas at rupees 72 per dozen. How much profit or loss did he incur in this transaction? So, in this question, 48 dozen bananas at the rate of 48 per dozen उसने परचेस किया। So 48 रुपीज पर डजन के हिसाब से उसने खरीदी। सो 48 रुपीज पर डजन के हिसाब से 48 डजन बनाना उसने खरीदी किया, ओके, परचेस किया हुआ है। और उसके बाद जो उसने बेचा वो 72 रुपीज पर डजन के हिसाब से बेचा, 72 रुपीज पर डजन के हिसाब से बेचा। यानी कि उसने 72 में से अगर 48 माइनस किया जाए तो 24 रुपीज पर डजन पे उसको प्रॉफिट हो गया। पर डजन पे 24 रुपीज पर डजन पे उसको प्रॉफिट हो गया। तो लॉस के तो ऑप्शन वैसे भी कैंसिल हो गए, लॉस के आंसर कैंसिल हो गए। और यहाँ देखिए 1880 रुपीज प्रॉफिट है और 48 रुपीज प्रॉफिट है, तो 48 रुपीज तो प्रॉफिट उसको होगा नहीं, क्योंकि उसने 48 डजन बनान परचेस किया, उतने ही उसने बेचे हैं। तो 48 डजन अगर उसने खरीदी किए हुए हैं और 48 डजन ही वो बेच रहा है, अगर एक डजन पे उसको 24 रुपीज मिल रहा है तो 48 डजन पे उसको 48 से ज्यादा ही मिलेंगे, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, हमें निकालना नहीं है, सिर्फ हमें आंसर के नजदीक जाना है। ठीक है, नजदीक जाना है तो हमें नजदीक चले गए हम ऑप्शन क्रमांक 2। इन द क्यूबॉइड शेप टैंक, क्यूबॉइड शेप टैंक है एक क्यूबॉइड शेप, और वाटर इज बीइंग पोर्ड फ्रॉम द टैप एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 108 क्यूबिक मीटर है। हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक टू हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी। तो उसकी कैपेसिटी तो 108 की है और हमें जो भरना है वो टैंक कैसे भरना है, हाफ भरना है। हाफ यानी 108 का हाफ हो जाएगा 54। ठीक है, उसके बाद ये हमें जो ऑप्शन दिए हुए वो आवर्स में दिए हुए हैं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। उसके बाद हमें बताया गया है कि उसका जो परसेंटेज है, रेट बताया हुआ है 60 लीटर पर मिनट, यानी कि 60 लीटर पर मिनट का दिया हुआ है। हमें जो आंसर है वो आवर्स में दिया हुआ है, इसको फिर से मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 60 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, 6 ने इसको कैंसिल किया तो 9 आ जाएगा। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे हम, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 से फिर से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे तो आंसर 15 आऊंगा। 15 आवर के बाद वो जो क्यूबॉइड शेप की टैंक है वो फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, 15 आवर्स। हमने 1000 क्यों किया, क्योंकि हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये क्यूबिक मीटर में है, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 60 लीटर पर मिनट, और हमें जो आंसर दिया वो आवर्स में दिया हुआ है, इसके लिए 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹30,000 एट द रेट ऑफ 12% PA इन 1.5 years। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 30,000 पे।
तो दिया गया है 1.5 ईयर। सो तो जो पहला साल होता है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट लगता है, पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट लगता है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे हम 30,000 का। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100, तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा 2 0, और 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 12 से हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36, उस पर 2 0 लगा देंगे, यानी कि 3,600 क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा पहले साल के लिए। और फिर आधे साल के लिए निकालेंगे तो आधे साल का हो जाएगा 1800। 3,600 का हाफ करेंगे तो 1,800 आ जाएगा। मगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो ब्याज है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, यानी कि जो 3,600 जो पहले है उस पर ब्याज लगेगा और ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 3,600 पे 12% के हिसाब से हाफ ईयर का और ब्याज चढ़ाएंगे हाफ ईयर के लिए। सो 12 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा 100 से भी कैंसिल हो जाएगा। सो अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो वो हो जाएगा 216, और इसमें और 1800 मिला देंगे, पूरी एडिशन करेंगे तो 1 6 और ये हो जाएगा 5 6 1 6 5 6 1 6, ऑप्शन 4। या फिर तुम्हें अगर अलग तरीके से करना है तो हमें करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हमने 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाला, वो 3,600 है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा, ये जो इंटरेस्ट है वो हमारे जो प्रिंसिपल है उसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा पूरा 33,600। अब इस पर हम क्या निकालेंगे, आधे साल के लिए ब्याज निकालेंगे, यानी कि 12 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। 6/12 क्यों किया हमने, क्योंकि ये 6 महीने के लिए है। अगर महीने के लिए है तो डिवाइडेड बाय 12, अगर डे के लिए होता तो हम यहाँ पे 365 डेज करते हैं। सो डिवाइडेड बाय 100, सो दिस वन कैंसर, और ये 12 से कैंसर करेंगे। अभी देखिए इसका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 6 36, 3 कैरी करेंगे, 6 3 18 19 20 0 2 कैरी करेंगे, 6 3 18 20। सो 2006 आ गया हमारे आधे साल के लिए, और एक साल के लिए जो हमारा था वो था 3600। इनकी हम एडिशन करेंगे 3600। यहाँ पर थोड़ा मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया, यानी 6 6 36, 3 कैरी हो जाएगा, 3 6 18 19 20 21 का 1 और कैरी हो जाएगा 2। अभी देखो 6 1 6 5, तो 5 6 1 6 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सी भी मेथड अप्लाई करो जो हमें अच्छा लगा, वक्त नहीं होगा तो आप अंदाजे से इसको टिक कर सकते थे। ये 53 और 54 का जो क्वेश्चन है ग्राफ पर है, हमें पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ बार ग्राफ इज इट। तो ये देखो ये जो है वो डिवाइड किया हुआ है, दोनों इसमें डिवाइड किया हुआ है। एक इसमें जो दिया हुआ है वो परचेसिंग दिया हुआ है और इसमें सेल दिया है, कि इसको डिवाइड किया हुआ है, तो डिवाइडेड बार ग्राफ हो गया ये, तो ऑप्शन 1। ठीक है, ये तो बोनस क्वेश्चन था। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल परचेस एंड टोटल सेल फॉर द 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का एक ग्राफ दिया हुआ है, अप्रैल मई और जून का। हमें निकालना है, जो पहला जो वर्ड बताया गया है वो टोटल परचेस का बताया गया है, टोटल परचेस। तो टोटल परचेस की वैल्यू पहले निकाल देंगे हम, फिर उसका रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल परचेस कितना हुआ, परचेस जो बताया वो डार्क कलर में बताया हुआ है, यानी कि यहाँ से परचेस किया तो यहाँ पर 7,000 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हाफ परचेस हुआ यानी कि 2,000, उसके बाद हाफ यानी कि ये 1000 है तो ये 50 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, तो 2,500, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3,500। तो इनकी अगर एडिशन कर देंगे तो 3,000 प्लस 2,000 5,000 और 500 1,000 हो जाएंगे ना। 6 प्लस 7 के एडिशन करेंगे तो 13,000 क्या हो जाएंगे, उसकी परचेसिंग प्राइस कितनी आ गई, 13,000 आ गई, 13,000 आ गई, टोटल परचेस 13,000। और जो सेल वह है, तो बचा हुआ सेल है 7,000 है, 10,000 है, तो ये हो जाएगा पूरा 3,000, माइनस करेंगे तो
3000 है कि 7000, 3000 कितना आना चाहिए, 10,000 आना चाहिए। ये 2500 है, 2500 है तो ये हो जाएगा 6000 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3500 सीलिंग, और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3500 सीलिंग, क्योंकि 7000 के नजदीक जाना है। तो 3000 प्लस 3000 7, और ये 55 1000 एंड 7000, 7 प्लस 3 यानी कि हो जाएगा ये 10,000। अगर इनका रेशो निकालेंगे तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 13:10, 13:10 इसका रेशो आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है 3। देखिए क्वेश्चन जो है वो दो टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये जो 1/a माइनस बी है, इसमें क्या करेंगे हम, माइनस का साइन कॉमन निकाल लेंगे। अगर माइनस का साइन कॉमन निकाल लेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/, ये बदल डालो अभी, a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन अगर हम कॉमन निकालते हैं, माइनस साइन अगर हम कॉमन निकाल देते हैं तो इसके साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस बी, और ये हो जाएगा प्लस a। इसी को हम लिख सकते हैं a माइनस बी। अब देखिए 1/a माइनस बी माइनस 1/a माइनस बी, वही नंबर है, उससे वही नंबर माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, जो कि ऑप्शन 4 है। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ये हो जाएगा b माइनस ए, यहाँ पर b माइनस ए, और यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी प्लस a माइनस बी, और अपॉन में आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये देखो, ये प्लस a माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस b माइनस बी से कैंसिल, यानी कि ऊपर आ जाएगा 0। अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, अरे देखिए एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 910 एंड देयर सम इज 83, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। ये को प्राइम नंबर्स है, टू को प्राइम नंबर का एलसीएम दिया हुआ है 910, तो इसके फैक्टर गिराना पड़ेगा हमें। ऐसे फैक्टर चाहिए हमें जो कि को प्राइम नंबर हो। तो 91 देखते हैं, हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, 13 7 जा 91 हो जाता है, इस पर एक 0 बढ़ देंगे। अब 13 और 17 ये तो प्राइम नंबर है, तो इनमें तो कॉमन कौन सा भी नहीं रहेगा, तो कॉमन क्या आएगा, सिर्फ 1, और को प्राइम में नंबर में कॉमन सिर्फ 1 रहता है। तो इन दोनों की एडिशन 83 आती है क्या, ये पहले हमें देखना पड़ेगा। इनकी सम आती है क्या 83, तो बिल्कुल इनकी सम 83 आती है। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस अगर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 57 डिफरेंस निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करना, 70 में से 13 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 57, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, टू राइट एंगल स्केलेन ट्राइंगल्स आर ज्वाइंट अलोंग देयर हाइपोटेन्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल बी फॉर्म। टू सिलेक्ट टू करेक्ट ऑप्शन, टू करेक्ट ऑप्शन। द स्केलेन ट्राइंगल है, यानी कि सबकी जो लेंथ है वो अलग अलग है। सपोज इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, टू राइट एंगल ट्राइंगल लेने हैं। ऐसे ही ये 4 का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, और ये 5 का है। अगर हम यही साइज का लेना है हमें, यही साइज का लेना है, टू राइट एंगल ट्राइंगल लेना है हमें, जो इसकी लेंथ है वैसे ही। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूं इस प्रकार से, ये 3 सेंटीमीटर का है और ये 4 सेंटीमीटर का है, तो देखिए ये 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। फिर ये 4, ये 3, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। सामने सामने की क्या लेंथ सरीखे दिख रहे हैं हमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है उस प्रकार की, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, तो ये भी 90 का बन जाएगा। ठीक है, तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। देखिए हाइपोटेनस पे ज्वाइन करना है हमें, अलोंग देयर हाइपोटेनस। अगर ये मैं इस प्रकार से रखता हूं और इसी प्रकार से दूसरा रख देता हूं ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, काइट। तो दो ही ऑप्शन बन सकते हैं, एक तो रेक्टेंगल और एक काइट। 60 लीटर मिल्क कंटेन 15% फैट एंड 40 लीटर मिल्क कंटेन 8% फैट। If these two milks are mixed together, then what will be the percentage of fats contained in the mixture? तो मिक्सचर कर देंगे 60 और 40 यानी कि 100 लीटर हो जाएगा। 100 लीटर में कितने परसेंट फैट आ जाएंगे, देखो 60 लीटर में कितने आ रहा है 15% प्लस, क्योंकि प्लस करना है मिक्स करना है, तो 40% में कितना आ जाएगा 8% डिवाइडेड बाय ये 1 0 से कैंसिल कर देंगे हम, तो यहाँ पर 5 से डिवाइड कर देंगे, 5
3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 3, 3 3 जा 9, और यहाँ पर 0 0 से कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। क्या फिर ऐसा करेंगे सिंपल, ये 4 है, ये 8 है, 4 8 जा 32 हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 3.2 आ जाएगा, तो 9 प्लस 3.2 यानी कि 12.2% आ जाएगा, ठीक है। अगर वैसे निकालना होता देखो, ये 9% आ गया था हमें, ये 9% आ गया था, 9% फैट आ जाएगा, प्लस इसका जो भी आंसर आएगा वो तो इतना बड़ा नहीं आएगा कि 87 के ऊपर चला जाएगा या फिर 1120% हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी कट गए थे, ये भी वैसे भी कट गए थे, यही ऑप्शन राइट ऑप्शन था। ये 1/3 है, 1/2 है, 1/4 है, इसका मतलब 1/3 का यानी कि उसका क्यूब रूट निकालना है, तो 27 का क्यूब रूट 3 आ जाएगा, 36 का 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, और 84 का 1/4 रूट यानी कि 3 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 25 का 1/2 है, पावर 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है तो 5 आ जाएगा, और इसका 20 आ जाएगा। इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, 6 6 जा 3 3 जा 9, 9 6 जा 54 आ जाएगा, 54 डिवाइडेड बाय 100 अगर करेंगे तो 0.54 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट, इन अ सर्कल अ मेजर आर्क इज 60 डिग्री मोर देन द डबल द मेजर ऑफ इट्स माइनर आर्क, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ इट्स मेजर आर्क। देखिए ये सर्कल है, इसमें 2 आर्क बने हुए हैं, एक छोटा आर्क है और एक बड़ा आर्क है, ठीक है, कि मेजर आर्क है और एक माइनर आर्क है। जो माइनर आर्क है सपोज हम उसको x कंसिडर करते हैं, तो जो मेजर आर्क है क्या बोलते हैं, मेजर आर्क इस छोटे आर्क के डबल से 60 डिग्री ज्यादा है, डबल से 60 डिग्री ज्यादा है। तो हमें ये तो पता है कि पूरे आर्क जो होगा वो पूरे आर्क का जो मेजरमेंट होगा वो 360 डिग्री होगा, तो दोनों की एडिशन कर देते हैं जो कि 360 डिग्री आना चाहिए, 360 डिग्री। तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, 3x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, 60 डिग्री इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 3x का जो आंसर आ जाएगा वो 300 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो 100 दिखने के बाद यहाँ पर छलांग मत मार देना, देखो यहाँ पर x की वैल्यू 100 आ गई, x क्या है माइनर, हमें जो पूछा गया वो मेजर आर्क पूछा गया है, तो मेजर आर्क इसका डबल है, यानी कि 100 का अगर डबल कर दे तो 200 हो जाएगा, प्लस 60 है यानी कि 260 डिग्री, ऑप्शन 4। राइट द डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, डिग्री जो होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर। अगर हम 3 स्क्वायर को 3 का जो क्यूब है उसको 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का जो बेस है वो सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन चालू है तो जो पावर है उनकी एडिशन हो जाती है, तो x का पावर 5 हो जाएगा, तो 5 ही उसकी डिग्री हो जाएंगे, जो सबसे बड़ा पावर है। अगर यहाँ पर हम उसके बाद किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं x क्यूब का, तो वो x क्यूब 5 के पावर से बड़ा नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर, तो वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर जो होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि ऑप्शन 2 में दिख रहा है। देखिए अगर इनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो वो हो जाएगा 4/3 और पाई का आर का मल्टीप्लीकेशन आर स्क्वायर से कर देंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, और ये पाई, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ऑप्शन नंबर 2। रोहित परचेस अ 3-year-old यूज मशीन फ्रॉम मोहित रुपीज इफ द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो दिया गया हुआ है वो 5% का दिया गया है, हर साल 5% उसकी प्राइस कम होती है, पहले साल 5% प्राइस कम हो जाएंगी, फिर दूसरे साल 5% कम हो जाएंगी, और फिर तीसरे साल भी 5% का जो रेट दिया हुआ है। तो हमें पूछा गया है डिड मोहित मस्ट हैव बॉट द मशीन, तो कितने रुपए में मशीन बेचेंगे अभी, ठीक है। अभी देखिए 857,375 मल्टीप्लाइड बाय 100/95 करना पड़ेगा क्योंकि 5% दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 100 की प्राइस अभी कितनी होगी 95 होगी, कितने साल होगी 3 साल होगी, तो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इससे इसको हम डिवाइड कर देंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 2 4 और 2 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 जिस पर आते हैं, यानी कि 1 आ जाएगा,
ठीक है, इन सब का मल्टीप्लीकेशन ये आ जाता है। तो इससे इससे डिवाइड करेंगे तो इनका आंसर 1 आ जाएगा, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर ऑफ ए ट्राइनोमियल, जो ट्राइनोमियल है इसका फैक्टर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये है a माइनस बी का स्क्वायर माइनस 17 a माइनस बी माइनस 16। पहले हम इसका स्क्वायर निकालेंगे फिर ये करेंगे तो बहुत लॉन्ग लेंथली हो जाएगा। तो इसको हम कंसीडर करते हैं k, तो ये आ जाएगा a माइनस बी को हम कंसीडर कर रहे हैं k, यानी कि a आ जाएगा k का स्क्वायर माइनस 17k माइनस 16। अब तो आसान हो गया ना। अब हमें क्या करने का, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 60k स्क्वायर। अब इसको इसके फैक्टर ऐसे गिराने पड़ेंगे कि जिसका मल्टीप्लीकेशन तो 60 आ जाए मगर उनका सम माइनस 17 आ जाएगा। तो 60 का ऐसे कौन से फैक्टर गिर सकते हैं, 20 मल्टीप्लाइड बाय 30। तो ये माइनस है तो इसलिए बड़ा नंबर जो है वो माइनस लेना पड़ेगा, छोटा नंबर जो है वो क्या करना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। तो ये प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस 17 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60k स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि जो फैक्टर गिरेंगे वो फैक्टर गिरेंगे k माइनस 20x और k प्लस 3x। तो k माइनस 20x और k प्लस 3x, तो ये आ रहा है सिर्फ ऑप्शन 4 में। देखिए ये k की वैल्यू है हमारी a माइनस बी माइनस 20, ये k की वैल्यू है हमारी a माइनस बी प्लस 3। तो ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन 4 ही इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए x plus 3 is an even number, what will be the square of x from the following option। the square of x क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑड नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएंगे कि ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें बताया गया है कि ये क्या है, इवन नंबर है। देखिए अब x 3x प्लस 7 क्या नंबर है, इवन नंबर है। तो इसका जो ये इवन नंबर है, कौन सा तो भी नंबर आ जाएगा जो कि इवन हो जाएगा। ठीक है, s की अगर एक कौन सी वैल्यू डालने के बाद ये इवन नंबर आ जाएगा। तो देखिए ये जो 7 जो है वो तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर की हम किसी से सम करते तो वो इवन कब आ जाएंगी, जब दूसरा नंबर भी क्या होना चाहिए। देखिए एक ऑड नंबर है, सपोज ऑड नंबर है 7, तो 7 से अगर 2 हम ऐड कर देते तो 7 प्लस 2 9 आ जाएगा। 7 में अगर हम 4 ऐड कर देते तो 11 आ जाएगा। यानी कि एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर की अगर हम सम करते हैं तो ऑलवेज वी गेट ऑड नंबर। तो हमें तो चाहिए इवन नंबर, तो 7 में हमें ऑड नंबर मिलाना पड़ेगा। 7 प्लस 3 की एडिशन करेंगे तो देखिए 10 आ रहा है। 7 में अगर हम 5 मिलाएंगे तो 12 आ रहा है। यानी कि 2 ऑड नंबर की सम इवन होती है। तो ये जो 3x नंबर है वो भी क्या होना चाहिए, ऑड ही होना चाहिए। तो 2 ऑड नंबर का सम इवन नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय x क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x ऑड नंबर आना चाहिए। तो जिसमें एक ऑड नंबर है 3, तो x कौन सा नंबर होना चाहिए, तो 3 का अगर मल्टीप्लीकेशन हम इवन नंबर से करते हैं, 3 का मल्टीप्लीकेशन यानी कि ऑड नंबर है 3, इसका मल्टीप्लीकेशन हम किसी इवन नंबर से कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 हो जाएगा। अगर 4 से कर देते तो 12 आ जाएगा। यानी कि ऑड और इवन का मल्टीप्लीकेशन इवन ही आता है। तो हमें ऑड से ऑड अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लीकेशन 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ए नंबर x नंबर जो है ना वो भी क्या आना चाहिए, ऑड ही आना चाहिए। तो हमें पता चला कि अभी x जो है वो ऑड नंबर है, तो उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, ऑड नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे, देखो अभी यहाँ पे ऑड नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही आंसर आता है। तो ऑड नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें ऑड नंबर ही मिलेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए अब्दुल कवर 2/5 डिस्टेंस बिटवीन द टाउन A and B बाय कार एंड 1/2 द डिस्टेंस बाय बस टिल टाउन B इज 15 किलोमीटर अवे। व्हाट मे बी द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन A and B। तो देखिए जो टाउन है A और B का जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर ऐसा मानेंगे। उसका 2/5 यानी कि 2x बाय 5 प्लस उसका हाफ यानी कि x बाय 2 प्लस 15 इज इक्वल टू टोटल x किलोमीटर है। ये तीनों से उसने क्या किया है, ट्रैवल किया हुआ है। तीनों का ट्रैवलिंग डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर है। तो देखिए अभी इसको सॉल्व करेंगे हम। इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। 10 आने के बाद इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका एलसीएम
10 आ जाएगा। देखिए इसका डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम 10 आ गया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को, तो ये जाएगा 4x/10 प्लस ये आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 10 आएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई 5x/10 आ जाएगा, प्लस इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150/10 आ जाएगा इज इक्वल टू x। तो सबका डिनोमिनेटर 10 आ गया, ऊपर के एडिशन कर दो 5x प्लस 4x 9x प्लस 150 इज इक्वल टू x। तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा, तो 9x प्लस 150 इज इक्वल टू 10x। तो 10x 9x इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 9x में से 10x में से 9x माइनस किया तो x आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 150। तो टोटल 150 किलोमीटर उसका डिस्टेंस था। ठीक है ना। अगर हम यानी कि हमें ये पूछा गया होता कि उसने कार से कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर ये पूछा गया होता कार से कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, तो हमें क्या करना पड़ता, 150 का कितना 2/5, 150 का 2/5 करना पड़ता, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 30, यानी कि 60 किलोमीटर उसने कार से, और हाफ किससे किया, बस से, यानी कि 150 का हाफ करेंगे तो 75 किलोमीटर आ जाएगा, और 15 किलोमीटर और बाकी रह गया था उसका जाना। देखो अगर टोटल मार देंगे तो टोटल उसकी 150 किलोमीटर ही आ जाएगी। अगर कार से कितना ट्रेवल किया अगर ये पूछा गया था तो आंसर आ जाता था 60। द कैपेसिटी ऑफ ए बकेट इज 10 लीटर इफ इट इज टू बी फिल्ड टू इट्स फुल कैपेसिटी, हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ 1.25 लीटर विल हैव टू बी एम्प्टी इन इट। तो देखिए 10 लीटर आना चाहिए, 1.25 लीटर की हमारे पास बॉटल है, उसको कितने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 लीटर आ जाएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 125 को 8 से मल्टीप्लाई करने से 1000 आ जाता है। 1000 आने के बाद 2 नंबर पे अगर पॉइंट दे दिया जाता है तो आंसर आ जाएगा 10 लीटर। तो 125 को 8 बॉटल अगर हम डालते हैं तो पूरी बॉटल 10 लीटर की भर जाएगी। ठीक है, बकेट भर जाएगी। इन अ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 108, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। एक एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 90 माइनस x, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या दिया गया है 108 डिग्री। तो हमें पता है कि जो दोनों नंबर का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए। ये कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 प्लस 108 करेंगे तो 198 आ जाएगा, माइनस x प्लस 198 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इधर चला जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 80 डिग्री। तो माइनस माइनस गेटिंग कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएंगी 80 डिग्री, जो कि एंगल हमारा आ जाएगा 80 डिग्री का ऑप्शन 2। इन द एडजॉइनिंग फिगर द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ एवरी साइड। ये 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो डायगोनल होता है, डायगोनल डिवाइडेड बाय √2। सो 12/√2 तो कोई भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, इसको भी √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा 2। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय √2 अपॉन 2 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएंगे, 6/√2 ऑप्शन 4। इसको सिलेक्ट 2 करेक्ट ऑप्शन, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका आंसर आ जाएगा 0.09, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01, पहले इनकी सम करनी है, सम कर देंगे हम, तो सम हो जाएंगे 0.10, उसमें से हमें इसका स्क्वायर यानी कि 0.04 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.06। तो 0.06 और सेकंड ऑप्शन आ जाएगा ये, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 0.06 ही आता है। अगर पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो सॉल्व करने के बाद वो 2 डिजिट पे आ जाएंगे, यानी कि 0.06 हो जाएगा। 4 वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर लाइज ऑन द सर्कल। देखिए ये सर्कल पे आ गया है, इसके वर्टाइसेस जो है वो सर्कल के पॉइंट है, ये हमें समझना है। उसके बाद क्या है, द सेंटर ऑफ सर्कल इज O, सेंटर O दिया हुआ है, रेडियस 7 दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ये शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो सर्कल का एरिया है, सर्कल के एरिया में से हम स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, सबट्रैक्ट कर देंगे।
तो एरिया ऑफ जो सर्कल है तो वो तो पता हो जाएगा हमें, रेडियस दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ जो सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, आर स्क्वायर यानी 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 154 स्क्वायर cm। ठीक है, अभी क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, ये जो हमें स्क्वायर दिया गया है उसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए रेडियस दिए हुए यहाँ से यहाँ तक 7, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 7 दिए हुए हैं, तो ये 7 और फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना आ जाएगा 7, क्योंकि ये भी रेडियस है, क्योंकि ये जो है वो जो सर्कल है उस पर लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सेंटर से सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है वो होती है रेडियस। तो ये 7 है, ये 7 टोटल हो गया 14। अब ये जो है स्क्वायर है, ये स्क्वायर का डायगोनल दिया गया है। सपोज अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें डायगोनल 12 दिया हुआ था और उसमें हमने साइड निकाली थी। तो हम साइड निकाल सकते हैं, डायगोनल से हम साइड निकाल सकते हैं, साइड से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो अगर डायगोनल 14 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, डायगोनल अगर 14 सेंटीमीटर का हमें दिया गया है, तो जो साइड आएंगी वो साइड कैसे आएंगी, 14 डिवाइडेड बाय √2, यानी कि फिर से 14 डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय √2। तो ये जाएगा 2 से ये हो जाएगा 2 से अगर 14 को डिवाइड करेंगे तो 7, तो 7 √2 इसकी स्क्वायर करना पड़ता है, तो ये जाएगा 49, और इसका जो अगर रूट निकल जाएगा तो ये जाएगा 2, इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 98। सो 154 जो आया था वो सर्कल का आया था, उसमें से 98 माइनस कर देंगे, तो 14 में से 8 माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए हमें एंगल DA वो दिया हुआ है 60 का, एंगल ये दिया गया है 35 का, और ये एंगल पूछा गया है AOC कितने का आ जाएगा। ठीक है, अगर देखिए ये L और M क्या है, पैरेलल लाइंस है, और इसमें ये ट्रांसवर्सल दी हुई है, ये ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल होने की वजह से ये दो कौन से एंगल बन जाएंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, जिसकी मेजरमेंट सेम रहती है। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का है, ये 35 डिग्री का है तो ये भी 35 डिग्री का है, दोनों की एडिशन कर देंगे तो एडिशन आ जाएगी 95 डिग्री। ऑप्शन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट 2 करेक्ट अल्टरनेटिव। इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। अ रे हैज अ मिड पॉइंट, रे को कभी मिड पॉइंट नहीं रहेगा, और लाइन हैज अ मिड पॉइंट, लाइन को भी नहीं रहेगा। ठीक है, और कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हैज अ मिड पॉइंट, ये हो सकता है। देखिए अगर एक सर्कल है जिसका एक सेंटर है और ये कॉर्ड है, अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो हमें पता है सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये जो कॉर्ड है इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि ये मिड पॉइंट है, इक्वली डिवाइड हो जाएंगे यानी कि मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट मिल जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट पासेस थ्रू इट्स मिड पॉइंट, ये भी होता है। देखिए एक लाइन सेगमेंट है, इसका अगर हम परपेंडिकुलर निकालते हैं तो वो भी सेंटर से जाएगा, यानी कि उसको भी मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी रॉन्ग है, यानी कि ए और बी ऑप्शन 1 एंड 2। लास्ट के 2 एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स when added to the binomial 1 plus 64 a square b square will make a perfect square। तो परफेक्ट स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे 2 कर अल्टरनेटिव हमें फाइंड आउट करना है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि मिडिल का टर्म जो है वो क्या रहता है, ट्वाइस रहता है इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, प्रोडक्ट का ट्वाइस रहता है। तो देखिए ये इसको लिखेंगे हम a स्क्वायर और इसको लिखेंगे हम 8ab ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू आ जाएंगी 1 और b की जो वैल्यू है वो है 8ab, यानी ये b, सपोज ये b है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8ab आ जाएगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 2 16, 16ab आ जाएगा। ये तो प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, तो ये माइनस 16ab और प्लस 16ab, ऐसा क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे गए हैं। और ये लास्ट का क्वेश्चन जो है वो देखिए, विल बी कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर टेस्ट कौन से टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ABC और B और DCB। देखिए इनमें एक साइड सेम बताई गई है, यानी कि साइड,
एंगल सेम बताए गए हैं यानी कि एंगल। और ये जो बीसी साइड है ये तो कॉमन ही है, इसी साइड पर तो दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं यानी कि साइड यस ए यस टेस्ट के हिसाब से ये पूरे दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पूरे 75 क्वेश्चंस के आंसर निकाल लिए हैं। अगर कुछ गलत हो जाता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि नहीं सर इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं, ये हो सकता था। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।